Yes. ओके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है. ओके सो नाउ लिसन हियर. Sir. Yes. Hello. Any problem? Okay. Now see here. Question No, number sir. 4. Write down. First problem. Question number 4. Multiply. Question A. That is y plus 2 into y minus 4. Y plus 2 into y minus 4. Okay. So see here. Write down that question. I will explain you how to multiply first bracket to second bracket. Actually, I know very well how to multiply it. Means you know that one. I think I explain you such type of multiplication. Okay, first bracket into second bracket. That you know how to multiply it. Very simple problem is this. Yes, sir. Now listen here. Y, what is there? Y plus 2 into y minus 4. Okay, see here. Y plus 2 into y minus 4. Y plus 2 into y minus 4. Okay, so you have to multiply this bracket into this bracket. Means first bracket into second bracket. So how to multiply it? So first you have to multiply one number. Okay, first you have to multiply y into this bracket, then plus 2 into same bracket. Okay, so this will be equals to, in solution, you have to write this problem, y plus 2 into y minus 4. So this will be equals to, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, वहां तक मेरा माइक नहीं जाएगा, ठीक है. So y plus 2 into y minus 4, this will be equals to y into this bracket. So y into y minus 4 plus 2 into again same bracket, plus 2 into same bracket, that is y minus 4. अब आपकी गलती कहां होती है, आप यहां प्लस साइन या माइनस साइन देना भूल जाते हैं. ओके, सो डोंट डू दैट मिस्टेक. नाउ लिसन हियर. सो नाउ यू हैव टू यूज व्हिच प्रॉपर्टी? हेलो, distributive. Very good. Now you have to use distributive property. Y into y minus y into 4. Same property you have to use here also. Okay, so first you have to multiply this. Y into y. Y into y means y square. Okay, minus y into 4 means y4. So you have to write 4y. 4y. Okay, first you have to write the number, that is coefficient, and then you have to write variable. Okay, here plus 2 into y means 2y. Y 2 minus 2 4s are 8. 8. Okay, now one more step is remaining here. Y square, single y square is here. Any like term is there of y square? No, so you have to write that y square only. Okay, this minus 4y and 2y are the like terms. These two are the like terms, so that's why you have to add or subtract that terms. ये दोनों like हैं, इसलिए इसमें addition subtraction होती है. Okay, so minus 4y plus 2y, minus 4 plus 2. Minus 2y. Very good. Minus 2y. Then minus 8 single. So over it is. हो गया. Okay. Y square minus 2y minus 8. This is the answer. Okay, understood? Sir, can you tell again? Sir. Okay. Now listen Sir, here. yes, sir. Question number E. Question number 4th का A. 4th A. Okay. Now see here again. I will explain you this problem. See here, both brackets are given here, y plus 2 and y minus 4. You have to multiply first bracket into second bracket. Okay. So for that, what you have to do? First, you have to write problem as it is. Okay. Then you have to multiply single number to this bracket. So first you have to multiply y into this bracket, then plus 2 into same bracket. देखो मैंने वही किया है. So y into y minus 4 plus 2 into same bracket y minus 4. Okay. Now you have to use the distributive property here. So y into y means y square minus y into 4 means 4y you have to write, plus 2 into y means 2y, then minus 2 into 4 means 8. Okay. Now next step, y square as it is, minus 4y and plus 2y, both are like terms. So that's why you have to add or subtract these terms. So minus 4 plus 2 means minus 2y, and then minus 8 as it is, that is the constant. Okay, understood? Hello? Yes, sir. Okay, write down this. Yes, sir. Write down or take screenshot. I have one question. Yes. Sir, written. Okay, over na? Okay, good. Yes, sir. Now next problem, Yes, that is sir. which one? कौन सा लेंगे हम अभी? Question number C.
ई है, ई नहीं, ई लेंगे, ओके ठीक है सर ई ओके राइट डाउन ई क्वेश्चन नंबर 4th ई 2x square y 2x square y E question 2x square y minus 3y into 3xy minus x. In bracket 3xy minus 6y minus Okay. x. 2x square y minus 3y into 3xy minus x. Okay, now listen here. Same method you have to apply here also. Okay, you have to apply same method. So first you have to write this problem as it is. मैं यही से solution समझो. So this will be equals to. You know very well what you have to do here. Okay, so first you have to multiply this number into this same bracket minus 3y into this bracket. ये step आपको पता है सभी को अभी? हाँ ठीक है, तो ये स्टेप पहले कर लेना. 2x square y 2x square y into a bracket क्या आएगा 3xy minus x. Okay, then again minus 3y into same bracket minus 3y into 3xy minus x. Okay, understood this one? yes sir. हाँ, अब देखिए Yes, next sir. step. अभी first you have to multiply these numbers coefficients. 2 3s are 6. Okay, 2 3s are 6. X square and x raised to power 1. 2 plus 1 3 means x raised to power 3 means x cube. Okay, Cube. y भी है साथ में, y into ये 1 है, इसका Y पावर 1 है, square. so y square. Square. इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, ये आया 2 3 6 x क्यूब y स्क्वायर. अब माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 1 है, तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब और y सिंगल है तो y आ जाएगा. ये समझे क्या आप? हाँ सर. Yes, sir. ये sir. स्टेप समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. Yes, नाउ sir. नेक्स्ट स्टेप, बिफोर मल्टीप्लाई this 3y into this bracket, you have to remember one thing, the negative sign is out of the bracket, so the sign of the numbers are changed which are inside it. Okay, ठीक है. तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन है वो चेंज होने वाले हैं. इसका किसी के घर से आवाज आ रही? हेलो, किसी के घर से आवाज आ रही है? आप म्यूट हो जाओ. ओके, नाउ सी हियर. तो इसका साइन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनने वाला है. 3 3s are 9, तो पहले x लिखते हैं, x एक ही है, सो यू हैव टू राइट x फर्स्ट. y वाली टर्म बाद में लिखना है, y रेज़ टू पावर 1 Y square. y Y square. ओके, देन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. 3x पहले लिखेंगे और y बाद में लिखेंगे 3xy. ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स है क्या? नहीं सर. अगर लाइक टर्म्स है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर. नहीं सर. देयर इज नो No, एनी sir. लाइक टर्म. नहीं like term is sir. not there. Not Okay. there. अंडरस्टूड? मिस yes sir. Yes, sir. ओके, राइट डाउन. Yes, sir. राइट डाउन. Sir, written. Okay, good. Or take screenshot those who are not written. Sir, one question. Yes, Arshali. No, sir. Okay. Sir, So again, is there any problem? Can you solve the remaining? Yes, sir. Yes, sir. Question C लिखो, एक बता देता हूँ. Okay, write down question number C. ठीक है? Then remaining two problems that you have to solve. Then question 5 will start. So write down question number 4th C. X square plus 5. Question number C. X square plus 5. X square plus 10. सर कहीं से आवाज आ रही है. आप किसी के घर से फिर से आवाज आ रही है? आप देखो किसके घर से आवाज आ रही है, वो म्यूट हो जाओ. सर आकांक्षा चोपावर. What? आकांक्षा Listen here. चोपावर. X square plus 5 into x square plus 10. Okay, so again you know very well this x square into this bracket plus 5 into same bracket. So that step you have to write first. X square into
x square plus 10, then plus 5 into same bracket, that is x square plus 10. Okay. Now next step, now you have to use the distributive property, x square into x square, x raised to power 2 plus 2 4. Okay, plus x square into 10 means 10x square. 10x square. Okay, 10x now square. good, plus 5 into x square means 5x square plus 5 5x square. now check here, is there any like term? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Two are like terms, so you have to write one more step, x raised to power 4 as it is, 10x square plus 5x square. 10 plus 5 Square. 15x square. plus 50 Square. over. Understood? Yes, sir. Write down. Yes, sir. Write down. Over. सर अभी एक मिनट रुको सर, एक मिनट रुको. Question number 5. Take screenshot. सर एक मिनट. सर स्क्रीनशॉट में ब्लर आता है सर ऐसे. Okay. So write down. आज बहुत कम लोग हैं. 7. 37. 37. हाँ, listen here. Over. Over. Yes, sir. Question Yes, number sir. 5. Find the product. Again same problem. Find the product. यहाँ 3 number है. Write down first. First problem. Question 5th. Question 5th. First problem. That is 5 minus 2d minus d square. 5 minus d minus d square minus 2d. किसी के घर से आवाज आ रही है? हेलो, आप म्यूट हो जाते हैं कि मैं आपको म्यूट कर दूं? सर सबको म्यूट कर दो. Now listen here. Listen to me. So see here, 5 minus 2d minus d square into 3 minus 2d. You have to multiply this bracket into this bracket. Or suppose first you write this bracket and then you have to write this bracket, no problem. आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. आप किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई किए तो आंसर सेम ही आता है. फॉर एग्जांपल 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, आंसर आपका 6 आएगा. ठीक है, तो आप कैसा भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. तो यहाँ 2 ही हमें टर्म्स नजर आ रहे हैं या 3 टर्म नजर आ रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं ऐसे करता हूं, ये और ये इंटरचेंज कर देता हूं. सो 3 minus 2d इंटू ये ब्रैकेट करता हूं 5 minus 2d minus d square. ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू सेम ब्रैकेट माइनस 2d इंटू सेम ब्रैकेट करेंगे. अभी जो मेथड किए थे वही मेथड. ठीक है, यहां किए रहते तो 3 बॉक्स बनाने पड़ते थे 3 बार, अभी 2 ही करने हैं हमें. 3 इंटू दिस ब्रैकेट, सो 3 इंटू 5 minus 2d minus d square. ओके, then minus 2d into same bracket, minus 2d into same bracket, here 5 minus 2d minus d square. Okay, understood this one? This step? Yes, sir. हाँ, now Yes, see sir. here. अभी एक एक इंटू करना है. Again you have to use the same property, that is distributive property. So 3 into 5 करेंगे, 3 5s are 15. Okay, 3 5s are 15 minus. Now 3 into 2d करना है. 60. 3 to the 6. 60. 6d हो गया. Again minus 3 into d square means 3d 3d square. square. ठीक है, अभी यहाँ पर साइन चेंज होने वाले हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है. सेम वैसे ही करना है. 2 पहले माइनस साइन, यहाँ प्लस है तो ये माइनस साइन दे देंगे यहाँ पर.
-10d टू फाइव 10 d है, एक ही डी है तो 10 डी, ओके, plus 4d प्लस Plus 4D 4d डी इंटू डी, d हो जाएगा plus 2D square डी plus 2D square 2d cube 2D square टू डी क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं Cube आता, क्यूब आता। आता, ओके. Sir, नाउ cube. सी चेक हियर, इज देयर एनी लाइक टर्म्स? yes sir yes sir तो ये अनलाइक टर्म है जिसका पावर सबसे ज्यादा है, तो उसे पहले लिखता हूं मैं 2d क्यूब, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, 2d क्यूब सीक्वेंस में लिखेंगे, वो सिंगल टर्म है. अभी स्क्वायर वाली टर्म ये है और ये है, ये दोनों लाइक टर्म है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है इसमें. 3d स्क्वायर और 4d स्क्वायर, 4 और -3 है, +4 -3, 4 -3 1 1. D square स्क्वायर मींस +1d स्क्वायर, d 1 लिखना square है, सिर्फ d स्क्वायर लिख सकते हो आप, ठीक है. बाद में ये दो लाइक टर्म है, दिस एंड दिस, -6 -10 -16 16 d, D -16d, ये भी हो गया. अब लास्ट में बचा कांस्टेंट, उसे लास्ट लिखते हैं, +15. 15 ये हो गया सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया. कौन सा ऑर्डर बोलते हैं इसको? डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, using order ओके. पहले क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली, फिर पावर 1 वाली, और लास्ट में कांस्टेंट. तो इस तरह से लिखना है इसे. अंडरस्टूड? Yes, हाँ, sir. sir. ओके, राइट डाउन. yes sir आप इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, साइन में कोई प्रॉब्लम होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है. 3 5 15 आप बोलते हो और लिखते हो कि यहाँ पर कुछ भी 25 वगैरह लिख देते हो, ये भी प्रॉब्लम होती है. इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है. ऐसे तो दिखने में इजी लगते प्रॉब्लम, लेकिन यही प्रॉब्लम गड़बड़ कर देते हैं. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज which one is a hard problem? sir G Which one? G. yes Question sir number G. yeah क्वेश्चन जी भी इजी है, 3 नंबर है दोनों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. जी लेने से अच्छा हम एच लेते हैं, एच, ठीक है. एच में माइनस साइन वगैरह है, वो प्लस वाला इजी हो जाता है. एच, राइट डाउन एच, क्वेश्चन एच. ओवर दिस प्रॉब्लम, yes sir Yes, sir. ओके. Yes, sir. का होने का हो तो बताओ अभी. yes sir हो गया ओके, गुड. राइट डाउन क्वेश्चन एच. क्वेश्चन नंबर एच. -2y plus z What is here? I minus 4x minus 2y plus z. 4x 4x minus 2y Plus Z into 5x plus 5 minus 5y x minus 5y plus plus z z. 5x minus 5y plus z. ठीक है, वैसे ही करना है. पहले 4x into this bracket minus 2y into this bracket plus z into this bracket. ओके, मतलब पहली सर ये स्टेप 3 बार में आएगा राइट डाउन. हाँ, 3 बार करना है यहाँ पर, ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेप तो आपको लर्न हो गई होंगी अभी तक. तो 4x इंटू लिख लेते हैं yes हम. sir 4x इंटू वो ब्रैकेट 5x माइनस 5y प्लस z, ये हो गया. देन माइनस 2y इंटू अगेन सेम ब्रैकेट, माइनस 2y इंटू यही ब्रैकेट आएगा, plus 5x z माइनस 5y. plus Z नीचे लिखता हूँ यहाँ, plus 5 Sir, your voice is not audible. so your voice is not audible sir mic is disconnected I think. yes sir सर माइक को हलाओ थोड़ा सा सर उसको नहीं सर वायर 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 को चेक करो Connected एक बार wire को पिन को बाहर कर फिर हेलो. पिन कर. हाँ सर अभी आई. हाँ भी आ अभी रही आई नाउ Sir, you are not audible. सर नहीं Hello, आ sir. रही आवाज चेक द ऑडियो डिवाइस. नहीं आ रही सर अभी आ रही ना. Sir, अभी आ आ रही है अभी? सर आ रही है Okay, हाँ. now see here. हाँ. Now see here.
Now the next step that you know very well, that is the distributive property. So you have to multiply 4x into 5x, then minus 4x into 5y plus 4x into z. Okay? सर आप हेलो यस हाँ, अगर हम 4x इंटू 5y करेंगे तो 20xy हाँ लिख सकते ना, लिख सकते आप इसको भी पहले इंटू, सॉरी आप इसको भी इंटू कर सकते हो पहले, बाद में इसको कर सकते, बाद में इसको कर सकते। नहीं मतलब यस मतलब 4x इंटू 5x वो 20x x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 20xy लिखना है क्या? हाँ माइनस 20xy लिखना है, राइट, और बाद में 4xz लिखना है। अब जनरली प्रॉब्लम क्या हाँ। होता है, 8 में आने के बाद भी मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है, वो गलतियां ये करते हैं कि जैसे यही प्रॉब्लम लेता हूं मैं, 4x इंटू, समझो ये दो ही नंबर है, 5x माइनस 5y, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको इंटू करते, 4 5 20 स्क्वायर, और ये जो है माइनस 5y एज इट इज लिखते हैं। ये काफी बार मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं, इसको इंटू करते हैं लेकिन इसको इंटू करते ही नहीं, ये एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, तो ये हुआ रॉन्ग, हाँ सर। ये रॉन्ग होता है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स है सबको इंटू करना है, एक को नहीं। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो 4x into 5x, so first you have to multiply 4x into 5x, so 4 5s are 20x square. x square, then minus here 4x into 5y, okay, 4 Minus 20xy. ये करना है, 4x into 5y, 4 5s are 20, x into y means xy, okay, plus Sir, xy आएगा कि y आएगा? z नहीं लिखना है, हाँ, so 4x 4xz. 4xz ऐसे लिखना है, 4xz. ओके, अब ये इंटू करना है तो साइन चेंज होने वाले हैं, इसके बाहर निगेटिव साइन है, ठीक है, इसका साइन देखो प्लस है, ये तो माइनस लिख देना पहले, 2 5 are 10, y इंटू एक्स, वाई एक्स तो आपको एक्स वाई लिखना है, सीक्वेंस के हिसाब से चलते, एक्स वाई, एक्स पहले आता, वाई बाद में आता, ओके, माइनस है यहाँ पे प्लस, Sir, यस बोलो ना, तो 20xy आएगा कि yx आएगा? 20xy लिखो ना, yx लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने यहाँ yx लिखा और इधर xy लिखा तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि यहाँ xy ये लाइक टर्म है या नहीं है, ऐसा कभी कभी लगता है, लाइक टर्म है, क्या है, लाइक टर्म ही है, अगर आपने यहाँ yx लिखा तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपने yx लिखा तो चलेगा, लेकिन इधर समझो आपने xy लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, और जनरली एक आदत डाल दो आप कि सीक्वेंस से लिखना है, ठीक है, सीक्वेंस से लिखने की आदत डालो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं लिखा हूं मैं, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो इसमें लिखने का, जो स्टैंडर्ड है ना वो मेंटेन करना है आपको, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज जिसको बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, अभी कौन सा किया मैंने, 2 5 are 10, xy हो गया, माइनस है तो यहाँ प्लस दिया मैंने, 2 5 are 10 Plus 10x 10 square. 10y स्क्वायर, लास्ट में आएगा माइनस 2yz, माइनस 2yz, ठीक है, अभी लास्ट बचा है, इसके बाहर पॉजिटिव साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 5, किसी के घर से आवाज आ रही, देखो 5zx या xz लिख सकते हो आप, मैं xz लिख रहा हूं सीक्वेंस में, क्योंकि यहां मैंने xz लिखा है तो यहां भी xz ही लिखूंगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि ये दोनों लाइक टर्म है, ओके, माइनस 5 yz लिखूंगा मैं, z नहीं, क्योंकि मैंने वहां yz लिखा है, ओके, देन प्लस z into z स्क्वायर, अभी लास्ट स्टेप बचा है, इसमें आपको लाइक टर्म्स देखने हैं, 20x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली टर्म है क्या यहाँ पर कोई? हाँ सर, नहीं, 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर, देन y स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो उसे भी लिख लेते हैं पहले, प्लस 10y स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया, इसका भी काम हो गया, देन xy वाली टर्म लिखते, ये है एक और दूसरी ये है, और कोई है क्या xy वाली? माइनस 10y,
हाँ Minus माइनस 10 कितना extra. -10 -20 -30 Minus 10 xy extra. हाँ सर -30 xy Oh, sorry. then 4xz and 5xz 4 plus 5 9xz 9 then अब बचता है ये वाला हमें इसको 7 by पहले Z. लिखना चाहिए था 2YZ. ठीक है ये yz और कितना -7yz अब ये Plus Z square. z पहले यही लिखना था लेकिन अभी लास्ट में लिख दिया मैंने ठीक है देखो लिसन यार अगर आपने ऐसे लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप इसको स्टैंडर्डाइज बना लेने का x स्क्वायर वाली टर्म फिर y स्क्वायर वाली टर्म और z स्क्वायर को इधर लाना है बाद में ये लिख देना है आपने अगर ऐसा लिख के रखा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे ये भी सही है ठीक है तो राइट डाउन किसी के घर से आवाज आ रही हेलो और रिया के घर से आ रही दिख रहा है क्या आपको लिख लिया आपने हाँ हेलो सर Yes. सभी ने लिखा नो सर कृष्णा बटुआर शॉर्ट हाँ सर हो गया ओके हो गुड गया सर सर. हो गया okay now see here can you solve the remaining यस 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 सर okay तो लास्ट प्रॉब्लम लेंगे Yes. 6 नंबर का ओके सर हाँ okay listen here question number 6 if length and breadth of a rectangle are 2a plus 3ab plus b units and a plus 3b units respectively so what is its area in polynomial form understood what is the meaning of this सर साइड प्लीज यस सर Yes did you sir. understand sir. what is the meaning of this question Yes sir. ha Yes, So sir. in this question they are asking the area of polynomial. ha listen here what is given there length and breadth of rectangle means rectangle is given there having length and breadth is also given there you have to find the area of rectangle so you know very well what is the formula to find the area of a rectangle can you tell me Length into breadth. twice Length length into Length into okay very breadth. good. into breadth very good so write down length is equal to आप खुद करोगे ठीक है write down length is equal to write down Yes sir. Written. लिखे what is the length 2a 2a plus 3ab सर 3ab plus 2a plus 3ab plus b b. सर ब्रैकेट में लिखना है क्या so write down first length Yeah, is Sir. we can write. हाँ no. length is equal to आपने लिखा है कितना 2a plus 3ab 2a plus b plus B. a 3 plus 3ab plus 3ab plus b 2a plus 3ab plus b and breadth is equal to कितना है a what is the plus breadth 3 a plus 3b A plus 3b. a plus 3b now write down area of rectangle formula is equal to length into breadth. length into breadth length you know very well that is 2a plus 3ab plus b into a plus 3b आप दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं अभी तक कर रहे थे वैसे ही क्या सर? हाँ वैसे ही अभी जैसा कर रहे हैं। अब क्या है तो इसको पहले लिख लीजिए ये बाद में लिखिए और इनटू कीजिए सेम इसी तरह से करना है ट्राई करो
घर से आवाज आ रही? सर किसी ने तो भी दही का। यस, हो गया? सर आंसर मिल गया सर। सर हो गया। हाँ, व्हाट इज द आंसर? कैन यू टेल मी? सर नहीं सर, रुको सर, सर हो गया। रुको। सर 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3b स्क्वायर। एक मिनट। सर आंसर है 2a स्क्वायर प्लस 7ab b प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 9ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। A square B plus 9AB square plus 3B square. देखो यहाँ आंसर इस तरह से रहना चाहिए, 2a स्क्वायर, मतलब ये नंबर आना चाहिए, भले ये वो इधर उधर हो गया होगा। सर एक मिनट रुको सर, एक सर मिनट रुको 2x सर। स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। हाँ, लिसन हियर, एक मिनट। आपके टर्म्स जो है इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो बराबर आने चाहिए, और वो भी साइन के साथ, उसका साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो बराबर रहना चाहिए। मतलब ये टर्म आपके 2a स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 9ab प्लस 3b स्क्वायर। सर एक मिनट पहले से बताओ सर, सर एक बार, ठीक है, 2a स्क्वायर। सर एक बार फिर से बताओ। देखो ये टर्म है कि आपके इसमें 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर है सर। बराबर है हाँ सर। प्लस 7ab प्लस 7ab प्लस 3a हाँ सर। स्क्वायर b प्लस हाँ 3a सर। स्क्वायर b हाँ प्लस 9ab स्क्वायर हाँ सर। प्लस 3b हाँ स्क्वायर। सर। हाँ सर, हाँ सब है। तो ये राइट है। 5 टर्म्स होने चाहिए। सर मेरा Right है। ये सीक्वेंस 5 टर्म्स अगर आपने इधर सीक्वेंस अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका राइट है। ठीक है, फिर मेरा सीक्वेंस ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, और सर मैं सीक्वेंस में नहीं पर टर्म्स एक ही है। पॉजिटिव है, एक भी टर्म नेगेटिव। सर एक बार फिर से दोहराओ ना। आप आंसर चेक कर लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है आंसर, वही से देखकर मैंने बताया आपको, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, आप वहां से आंसर देख लीजिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो आप मेरा जब नेक्स्ट पीरियड रहेगा तब पूछ लीजिए। ठीक है, अभी हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखिए। फाइव बी में आपको गार्गी, तुम्हें 5b चाहिए। ठीक है, आप मुझे शाम को मैसेज कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ। ओके, नाउ राइट डाउन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। लिखे हेडिंग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज 6d, पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, exercise 6d, question number first, simplify. First problem है p raised to power 100 divided by p square. p raised to power 100 divided by p square. ठीक है, फर्स्ट का a, p raised to power 100 divided by p square, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। Okay, now listen here, solution. p raised to power 100 divided by p square है, आपको ये फॉर्मूला पता है, a raised to power m divided by a raised to power n रहा तो a raised to power m minus n होता है ना। बेस अगर सेम है, डिवीजन है, तो पावर में सब्ट्रैक्शन होता है। बेस अगर सेम है, क्योंकि बेस सेम है, देखो पावर डिफरेंट है और दोनों में डिवीजन है, ये डिवीजन इस तरह से लिखा है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, a raised to power m divided by a raised to power n, इस तरह से, इस फॉर्म में। इसका आंसर वही रहेगा, a raised to power m minus n, तो आप यहां लिख सकते हो p raised to power 100 minus 2, पावर में सब्ट्रैक्शन होता है जब डिवीजन होता है, बेस सेम होता है। This will be equals to p raised to power 100 minus 2 means P raised to p raised to power 98. 98. Okay, so this is your answer. Laws of indices एक बार देख लीजिए आप।
लॉज ऑफ इंडाइसेस याद रहने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप लॉज ऑफ इंडाइसेस जो 7 लॉज मैंने बताए वो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब मुझे याद है मैंने बताया आपको, लेकिन आपको भी याद रहना चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर सकोगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। ओके, सी हियर नाउ द नेक्स्ट, कैन यू टेल मी ओरली क्वेश्चन नंबर बी? सी वाला बता। बी का बताओ ओरली। M cube. m raised to power 6 3 हाँ मींस m क्यूब। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी लेंगे। X raised to the power 16, Y raised to the power 2. ओके, क्वेश्चन सी। सर 1 मिनट रुको सर। ये हो गया? हाँ सर वो हो गया। ठीक है, 16 by Sir, X 2. raised to the power 16, Y raised to the power 2. m रेस्ट टू पावर 16. सी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ x रेस्ट टू पावर 30 है क्या? X 20 है। raised to the अच्छा, power x raised to power 20 20. इंटू कितना है? y क्यूब। Y raised to power 5. रेस्ट टू पावर 5 है Yes. और x रेस्ट टू पावर 4 y क्यूब। x रेस्ट टू पावर 4 Yeah. y क्यूब। तो आपको ऐसा करना है, Y cube. x रेस्ट टू पावर ये 20 और ये माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 लिख सकते हैं आप ऐसा। 16. 16. y साथ में लिखना है y रेस्ट टू पावर 5 16. माइनस 3। y raised to the power दोनों में 16 y रेस्ट टू पावर 5 माइनस 3 ऐसे रहता। ठीक है, यहाँ इंटू साइन रहता दोनों में, ये इंटू साइन है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता। x रेस्ट टू पावर 20 माइनस 4 मींस 16 16. इंटू y। 16. अब इंटू देने की जरूरत नहीं, y रेस्ट टू पावर 5 माइनस 3 मींस 2 y स्क्वायर। 2. हो गया आंसर, x रेस्ट टू पावर 16 y स्क्वायर ओवर। Correct, sir. तो correct है। क्वेश्चन ई। सर e का बताओ। ई लिखो, ई का 49 a रेस्ट टू पावर 4